Arnab, I completely agree with what Suparnoji said, that he said that life of the chief minister is very important and nautanki or drama nahi kar rahi. Suparnoji, I must tell you, life of every human being is very important. So I am reminded of Gopal Majumdar's mother. He was also beaten black and blue, and law and order is a state subject. And I would wait for the report of the doctors, the 4-member team that has been constituted, and the Election Commission of India before I make a comment. But tell me something, Suparnoji. When the convoy of our national president, JP Nadda ji, was attacked, do you know what Mamata Banerjee had said? Though she was responsible for the law and order, she said, "ये नौटंकी हो रही है." क्या हुआ? What's happening? नंगा करके नहला रहा. And एक बात जरूर कहूंगा, ये लोग कह रहे हैं बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आए. And that is why I say she is getting a security cover from the state police. And I've been told it is around 300 in number at any given point of time. So are you admitting today that law and order has completely failed in West Bengal? 1, 2. These police officers could not even catch the culprits who had attacked Mamata Banerjee. And 3, in this age of technology, not even a single iota of evidence. And look at the irony, Arnab, that the same Election Commission of India, Mamata Banerjee was claiming to be biased. Claiming to be biased, she'll make the complaint to the same Election Commission of India. And she looks like a defeated player even before the votes have been polled and the counting has taken place. It seems as Anirban, she is not the same tenacious Mamata. She is a weakened Mamata who knows that she will lose Nandigram. And Mamata Banerjee is saying... No, is this a tit for tat? Is this a tit for tat? JP Nadda was attacked, so it's okay. Mamata is attacked. Like you, who had law and order? Anirban. Is appalling. It is appalling. Not that we have much respect for turncoats like you, but the law that you have hit today is appalling. When a 65-year-old woman has been severely injured, you find nothing else but to speak on whether she is going to win or lose. Were you there? Gaurav Bhatia responding as well. No merit. Were you How there? dare he make a How personal can you comment? attack a 65-year-old woman when she is so severely injured? Do you have any manners to debate? You have no manners to debate. When she was injured, were you there? पहले आज 50 रुपए ले लेना जाके पार्टी ऑफिस से टीएमसी के, ठीक है? अर्नब, Don't be such vile gutter level pride. Make a personal comment. Arey, you are an objection yourself. You are a blot. You are a blot on politicians. ममता बनर्जी ने कहा नौटंकी कर रहे हैं. people like you in ममता बनर्जी politics. को चोट लगी. Supposedly, अगर ये ड्रामा नहीं है, अरे তোমার থেকে শুনতে হবে না ভাই. इंसान তোমার থেকে শুনতে হবে না. তোমার থেকে শুনতে হবে না. গিরগিটি তুমি একজন. তুমি একজন পলিটিক্যাল গিরগিটি. আরে তুমি তো রং পাল্টাও. is more valuable. You have nothing but politics on your mind when a woman is injured like this. We lost. We don't expect such gutter They will level not pride from answer people on that, like you. Arnab. This is They extremely will not. unfortunate. अरे you, अरे It is 50 रुपए के दिहाड़ी के प्रवक्ता. साजिशन चोट पहुंचाई गई है, ये कहना है ममता बनर्जी का. किसने रची है साजिश? क्या हुआ है? 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह. तो वो ममता जी बताएं, चीफ सेक्रेटरी बताएं, क्योंकि जब तक ये या तो मीडिया बताए, मतलब रिपोर्ट्स दिखाई जाएं, जो विजुअल्स अगर वहां कोई कैप्चर हुआ है तो विजुअल्स दिखाई जाएं. मुझे तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है. पहले तो मैं कह दूं, ममता जी के पैर में अगर चोट आई है, जल्दी से वो स्वस्थ हो जाएं, जल्दी ठीक हो जाएं और पैर में मोच और दर्द जो है वो ठीक हो जाए. ये हम देखिए, ये चुनाव का विषय अलग होता है, मगर किसी को भी चोट नहीं आनी चाहिए. मगर इतना हम जानना चाहते हैं, निष्कर्ष पे इतनी जल्दी में क्यों पहुंचा जा रहा है? अभी मैं आपके रिपोर्ट को सुन रहा था. रिपोर्टर महाशय बिल्कुल बता रहे थे कि वो गाड़ी में जा रही थी, एक पैर उनका गाड़ी से बाहर था और अचानक किसी ने दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, जिसके कारण उनके पैर में चोट आ गया. तो ये किसने बंद करने की कोशिश किया? गाड़ी को धक्का लग गया क्या? साइड में बहुत लोग खड़े थे जिससे कि एक्सीडेंटली गाड़ी का दरवाजा बंद हो गया? किस प्रकार की परिस्थिति थी? बगैर जाने हम इसको साजिश कैसे कह सकते हैं? तो पहले तो रिपोर्ट दिया जाए, उसके बाद हम इस पे बातचीत करेंगे. गुमोना जी, ये बताइए कि सीएम के साथ तो उनकी सिक्योरिटी रहती है, वो लोग कहाँ थे? साथ ही मार के वो भाग भी गया शख्स, तब भी वो नहीं पकड़ पाए.
क्या हुआ जरा बताइए। पहली बात ये है कि अगर संबित जी को ये तैयार कर लीजिए कि अर्जुन सिंह सही है कि आप सही है। आप फिर भी कह रहे हो अगर चोट लगी है, विजिबली देख रहा है भाई साहब, उनके पैर में दर्द है, पैर में चोट है, हम सब देख सकते हैं, हम अंधे नहीं है। किस तरह से घटना घटी वो बता रही है, तो वो अगर वो विक्टिम है हम तो उन पे विश्वास करें कि आके जल्दी से और जोर से कुछ लोग दरवाजा बंद कर दिया। वो किस तरह से घटना घटी उन्होंने खुद ने बताया, और पुलिस भी थे। ये सब तो एफआईआर दर्ज जरूर करेंगे, लेकिन आपके जो बयान है यहाँ पर बीजेपी का, जो अर्जुन सिंह जो सांसद है, वो कह रहे कि ये ड्रामा है, ये ड्रामाबाजी है। ये इस तरह का आपका ये सेंसिटिविटी है। आप देश की दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आपके लीडर को देखिए, आप फिर भी कह रहे हो कि हाँ मानते हैं अगर चोट लगे, ये अच्छे भाई साहब। लेकिन देखिए यहाँ बंगाल में आप किस लोगों को पाल रहे हो, किस लोगों को आप पोस रहे हो। वो कह रहे हैं कि ड्रामे अभी देखा इस चैनल में। अगर आप विश्वास भी ना करो, आपके एनिमी हो, खुद को आप इस तरह से बोलो। अब दिख रहा है ममता दी, विजिबली दिख रहा है, रिपोर्टर लोग कह रहे हैं, जवाब लेते हैं, जवाब ले रहे हैं। ठीक है, संबित जी जवाब दे रहे हैं। आपकी जो पार्टी के सांसद है, इस तरह का बयानबाजी होगा। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि चुनाव आयोग भी रिपोर्ट मांगती है, तो रिपोर्ट के बगैर उसे साजिश कह देना, एक के बाद एक उसे साजिश कह देना। और मैं अभी एक चैनल में था जिसमें टीएमसी के प्रवक्ता ने कहा ये तो ममता बनर्जी को असैसिनेट करने का प्लान बीजेपी बना रही है, ये बिना रिपोर्ट के असैसिनेशन का प्लान बना रही है, ममता बनर्जी को मारने का प्लान बना रही है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मारा, कुछ लोगों ने कहा बीजेपी की गाड़ी चढ़ा दी गई उनके पैर के ऊपर। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये बिना रिपोर्ट के ये सब चीजें कहां से आ गई ये सब चीजें? तो स्वाभाविक है हमारे नेता भी उस पर रिएक्ट करेंगे, सवाल पूछेंगे। देखिए, बिना रिपोर्ट की बातचीत करना, कोई फुटेज हो तो दिखाया जाए। और मैं तो पूछता हूं, ये ममता बनर्जी कोई साधारण महिला तो है नहीं, वो वर्तमान में बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। एक बहुत स्ट्रांग सिक्योरिटी फोर्स उनके साथ होता है। जिन लोगों ने उन्हें मारने की कोशिश की, उनके पैरों पर गाड़ी चढ़ा देने की कोशिश की, जैसे कि इल्जाम है, इतनी बड़ी फोर्स उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं करती है, उन्हें गिरफ्तार भी नहीं करती है, और अभी तक एफआईआर भी नहीं हुआ है। और अभी मैं टीएमसी के बड़े नेता को सुन रहा था, इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उस पर भी विचार हो रहा है। बताइए इसका अर्थ क्या है? क्यों नहीं आप विचार क्यों कर रहे हैं? कंप्लेंट तो करना ही चाहिए, एफआईआर भी अभी तक हो जाना चाहिए था। और जो लोग वहां मार रहे थे ममता जी को, इतनी भीड़ में वो भाग के तो नहीं चले जाएंगे, उनको तुरंत सिक्योरिटी फोर्स ने वहां गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मैं ये जानना चाहता हूं।